Good evening, everyone. I hope I'm audible to everybody. Yes, Neha. Okay. So, good evening, everyone. On behalf of Team Tarun, it is our privilege to introduce an exceptional scholar and an inspiring figure in the field of commerce, Jyoti Gupta ma'am. Her academic journey is nothing short of remarkable. She has made significant strides in her education, currently pursuing her doctoral studies at the Department of African Studies at the University of Delhi. This dedication to exploring diverse perspective is a testament to her commitment to broadening her understanding and impact in her field. In 2020, she achieved an outstanding milestone by securing the All India Rank 1 in the JRF Commerce examination. On her very first attempt, this accomplishment speaks volumes about her dedication, hard work, and exceptional intellect. Following this, she furthered her academic credentials by qualifying for the NAT in Management in 2023, reinforcing her expertise and commitment to advancing her knowledge. Beyond her academic achievement, she is also a life member of the Indian Commerce Association, where she actively contributes to the discourse in commerce and supports the development of future scholars. Ma'am, we are honored by your presence and we request you to kindly share your valuable insights with our students, guiding them on their path to academic success. Please proceed, ma'am. Thank you so much, Neha. Thank you for the generous introduction. So, first of all, I would like to thank Tarun for inviting me for this platform. And he told me that they are freshers and they want some guidance on their GRF exam. So, this session will be very brief. I'll try to sum up as soon as I can. I'll just focus on the major points and then we'll have a discussion. All the doubts which you have so far, or whatever you think about the exam, wherever you are stuck, even if you have attempted or not attempted, that's totally fine. If you have started, or even if you are just planning to start studying for the exam, you can ask any doubts you have. So we'll try to make it as engaging as possible. Okay. So as Neha has already introduced me, she just missed out that I'm teaching at Deen Dayal Upadhyay College, Department of Commerce, and rest has already been explained by her. Starting with the first and the foremost thing, as most of you are freshers, so first you have to understand कि एग्जाम का पैटर्न होता क्या है, कि किस मोड में होता है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, ऑल दिस इज वेरी नेसेसरी. अगर आपको यही डिटेल्स नहीं पता होंगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेल इन एनी एग्जाम. ठीक है. So first things first, the exam mode, it is CBT, that is online pattern. Initially it was in pen paper mode, and the last attempt was also modified. Initially we were told that the exam would be held in pen paper mode. It actually happened in pen paper mode, but due to some discrepancies that exam was cancelled. I'm sure you would have heard about it. It was all across the news. So after that they again got back to CBT, and there's no plan of going back to pen paper mode. So all those who are not very well versed with laptops and computers, try to attempt online exams as much as you can. Try to use a little of, you should know how to move the cursors and the basics at least. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में पहुंच गए, आपको सब आता है and then you are not able to operate the computer. That should not happen with you. ठीक है. सेकेंडली, द लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं. इट इज अप टू यू, विच एवर लैंग्वेज यू फील फीजिबल, यू फील मोर कंफर्टेबल विद, यू कैन गो अहेड विद दैट. बट अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी होती है इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में, कि इंग्लिश में कुछ नंबरिंग अलग है लेट्स सपोज, एंड हिंदी में कुछ अलग है, कुछ जो डेटा पॉइंट्स हैं कुछ डिफरेंट है, तो हमेशा इंग्लिश वाला कंसिडर किया जाता है. सो इफ यू आर गोइंग अहेड विद हिंदी, मेक श्योर कि ये जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं ना, इसको आप एट द एंड क्रॉस चेक कर लो कि ये सेम तो है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है. यूजुअली नहीं होता है ऐसा. जस्ट इन लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस इट कैन हैपन, दैट टू नॉट वेरी ऑफन. बहुत रेयर सिनारियोज में ऐसा होता है. बट स्टिल द प्रेफरेंस जो एक्चुअल एंड में कंसिडरेशन होता है वो इंग्लिश का होता है. तो मेक श्योर जो हिंदी वाले लोग हैं, जो हिंदी में अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं,
वो ये चीज ध्यान रखें कि जो ये डेटा पॉइंट्स वगैरह हैं वो एट द एंड एक बार देख लें कि क्या क्या है उसमें। कमिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। यू डू नॉट नीड टू राइट अ सिंगल वर्ड, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 वुड बी करेक्ट। हर करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो हमेशा इंश्योर हम क्या करेंगे, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, नो मैटर व्हाट। इफ यू आर क्लूलेस, अगर आपने वो टॉपिक तक नहीं पढ़ा है, मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया विच हैज नॉट बीन कवर्ड, आपने जहां से भी पढ़ा वो टॉपिक के बारे में मान लो आपने सुना नहीं, और मे बी सम न्यू टॉपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें ऐसी आ जाती है ना जिसके बारे में नहीं पढ़ा रहता शायद। मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दैट, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देयर आर चांसेस कि आपका 25% चांस है कि वो आंसर आपका करेक्ट हो जाए। करेक्ट हो गया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो नहीं आता था ना, दैट्स फाइन, ठीक है। गोइंग अहेड विद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई लिमिट नहीं है कितनी बार एग्जाम दे सकते हो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड होपफुली वी ऑल थिंक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। ऑब्वियसली वी वांट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। जस्ट इन केस नहीं होता है, देन देयर इज नो लिमिट एंड देयर इज नो एज लिमिट ऑल्सो। For NET, there's no age limit. For GRF, 31 years is the age limit. If you cross 31, you cannot attempt, you cannot sit for GRF. Because I have a few batchmates in my department. They are like, they have crossed 30s and they're still trying to get through NET exam. And there are people who have qualified NET, GRF, everything in their first attempts. So it all depends on your strategy, how you prepare for the exam, how much time you can devote. And I'll tell you, it's easier to crack the exam in the initial years than the later years. Because in the later years, I am seeing people, they are having so much difficulty, they have so much burden of so many things that are across their life that they are not able to devote time. ठीक है, so always ensure and make, मतलब कोशिश हमें यही करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, मतलब अपने को मान के यही चलना है कि हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, एंड उसके हिसाब से प्रिपेयर भी करना है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए तो हो गया, दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। कमिंग टू द ड्यूरेशन, 3 आवर्स का पेपर होता है। यू हैव टू डिवोट 1 hour टू पेपर 1 and 2 hours टू पेपर 2. दैट इज द आइडियल टाइम विच यू शुड डिवोट, बट आपके ऊपर रहता है, ऐसा टाइम लिमिट खत्म नहीं होता है उसमें। आपको 3 hours मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इट स्टार्ट्स एट 9, तो 9 to 12 यू विल हैव द पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन दैट टाइम, ठीक है। कमिंग टू दैट नंबर ऑफ पेपर्स, अभी तक मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा, बिकॉज एक सेशन पहले इसका हो चुका है। तो एक आपका कॉमन पेपर आता है, दैट इज पेपर 1, एंड आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, दैट इज पेपर 2। लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि पेपर 2 में ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो पेपर 2 पे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, पेपर 1 भूल जाते हैं पढ़ना। दैट शुड नॉट हैपन। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 सिर्फ क्रैक कर लोगे तो पेपर 1 छोड़ दोगे तो आपका जो है स्कोर अच्छा बन जाएगा या आप क्लियर कर पाओगे एग्जाम। दैट डज नॉट हैपन। यू हैव टू स्कोर वेल इन बोथ द पेपर्स, इसलिए एम्फेसिस आपका दोनों पेपर्स पे रहना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव 50 क्वेश्चंस इन पेपर 1 तो 100 मार्क्स उसके हो गए, एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक इफ यू हैव 100 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स उसके हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद पेपर 1, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, सब चीजें डिस्कस कर ली। कमिंग टू सिलेबस एंड द स्टडी पैटर्न फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, वील स्टार्ट विद फर्स्ट पेपर। तो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में 10 यूनिट्स ईच होती हैं। पेपर 1 की 10 यूनिट्स आपकी ये होती हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीडीई एंड हायर एजुकेशन। आपकी ये 10 यूनिट्स इसमें रहती हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये तीनों यूनिट्स पढ़ते ही समझ आ जाती है सबको। मैंने किसी को नहीं देखा जिसको इन यूनिट्स में डिफिकल्टी होती हो सो फार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका इजी निकल जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डज नॉट गिव यू एनी पेन। आपको बेसिक जैसे आप स्कूल में भी करते थे ना, अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते थे स्कूल में, दैट इज द सेम थिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ्स ठीक ठाक आती है तो हो जाता है, ठीक ठाक मैथ्स नहीं आती है तो मेहनत लगती है फिर इसमें, क्योंकि ये आपका जो नॉर्मल रीजनिंग पेपर होता है ना किसी भी एंट्रेंस का, उस पैटर्न पे होता है।
अगर आपने बेसिक पढ़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के, तो ये हो जाते हैं, बहुत टफ पैटर्न नहीं होता है इसका। इंडियन लॉजिक जो है, ये एक चीज है जो न्यू आती है इस पेपर में। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा हो। सुना हो सकता है इन योर फैमिलीज, इन योर कॉन्वर्जेशंस, आपने सुना हो सकता है इस टॉपिक के बारे में, बट इंडियन लॉजिक लोगों ने पढ़ा नहीं होता है। तो उसमें आपकी मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें जो मेजर वर्ड्स होते हैं वो हिंदी में होते हैं। उनको समझना, उनको याद रखना और उनकी इंटरप्रिटेशन याद रखना कि किस वर्ड का क्या मीनिंग रहता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए। हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग हिंदी पढ़ने के वो डेली हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी में लिखते हैं, तो इट्स ईजियर फॉर दोज पीपल। कमिंग टू DI, अगेन बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, तो DI ऑल्सो यू कैन डू। बट DI में मैंने देखा है बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो DI इज समथिंग विच यू शुड प्रैक्टिस। मैथमेटिकल रीजनिंग, DI, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजें प्रैक्टिस करो। इवन इफ यू थिंक कि आपको आता है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दीज 3 यूनिट्स। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। कमिंग टू लास्ट 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो मुझे खुद इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बट मैक्सिमम पीपल टेल मी जिनका थियोरी याद रखने का तरीका अच्छा है, दोज हु कैन मेमोराइज, दे आर वेल, they perform well in these topics. If your knowledge about computers is low, तो ICT में आपको दिक्कत आएगी. If your knowledge about basic science, basic environment is low, तो आपको PDE में दिक्कत आएगी. Or if you're basic about the historical, NEPs and the history of Indian education basically, कि कौन कौन से acts आए, किस किस ने क्या क्या act दिए, क्या क्या उसका निष्कर्ष निकला, किस ईयर में आए, ये सब चीजें अगर पता है तो पीस ऑफ केक। अगर नहीं पता है तो ये सब याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी लोगों को होती है। तो ये तीनों यूनिट्स जो हैं, मेक श्योर कि आप साइमल्टेनियसली पढ़ें और एक बार पढ़ के छोड़ नहीं दें। इसको पढ़ने के बाद यू हैव टू रिवाइज इट। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन है, आपने पढ़ लिया, आपको सब समझ आ गया, आप उसको लेटर ऑन एक आध बार भी रिवाइज करोगे तो इट्स फाइन, बट दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग। ऐसा नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दिया, दैट शुड नॉट हैपन विद दीज 3 यूनिट्स। एंड द प्रैक्टिस यूनिट्स बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके या आपका कॉम्प्रिहेंशन है, दैट शुड गो हैंड बाय हैंड, वो आपको करना ही है, ठीक है। कमिंग टू सम बुक्स, आप ये बुक्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल होती है। इफ यू गो टू बाय एनी गो टू एनी बुक स्टोर टू बाय दीज बुक्स, वहां पे आपको इजीली मिल जाती। ये सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगी, एंड दीज बुक्स कवर द होल ऑफ यूनिट 1 और द होल ऑफ पेपर 1। ऑल 10 यूनिट्स आर कवर्ड इन दीज बुक्स, तो आप इनको इजीली रेफर कर सकते हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है। Going ahead with YouTube channels. See, my journey has been a little different to what others' journey has been. Because मैंने कोविड के टाइम पे पढ़ा था, एंड उस टाइम पे बुक्स मिलना या फिर कोचिंग लेने जाना दोनों ही पॉसिबल नहीं था। तो what I restricted to was free content that is available on YouTube. कोई कोचिंग नहीं थी, कोई मेंटरशिप नहीं थी, कुछ नहीं था। All that I had was my laptop and internet connection. उसी पे सब ढूंढ लिया, कैसे पेपर आता है, क्या उसका बेसिकली जैसे अब सेशन हो रहा है, दीज सेशंस वर आल्सो नॉट वेरी फ्रीक्वेंट एट दैट टाइम। अभी तो बहुत इजीली आपको ये सेशंस देखने को मिल जाते हैं कि कोई भी जिसने भी क्लियर किया है, दैट पर्सन कम्स एंड टेल्स यू कि ऐसे ऐसे पढ़ो तो पेपर निकल जाता है। उस टाइम पे इतना ईजी नहीं था एक्सेस इसका। तो कोविड-19 तो आपको सबको पता है 2020 में इट वाज लाइक कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, कुछ मंगा नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, और वी ऑल नो, वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट फेज। तो दिस इज व्हाई आई नो अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स एंड दीज आर टोटली फ्री। सारा कंटेंट इन सब चैनल्स पे अवेलेबल है, A to Z आपको सब मिल जाएगा, बेसिक से लेके PYQs तक सब। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रेफर टू दीज चैनल्स फॉर पेपर 1। Coming to paper 2. Paper 2 में again we have 10 units, and ये 10 units I am happy to tell you कि इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ये
मेजॉरिटी इसका जो कंटेंट है वो आपका एमकॉम से कवर हो जाता है, एंड आई थिंक दिस हैज बीन एक्सप्लेन बाय द प्रीवियस स्पीकर ऑल्सो, कि आप एमकॉम जैसे जैसे पढ़ रहे हो साथ साथ ये सारी यूनिट्स आप पढ़ोगे उसमें, एंड इनका जो कंटेंट होता है वो भी सारा सिमिलर होता है, तो इसमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू आर डूइंग अलोंग विद योर एमकॉम. बट एक बार एमकॉम छूट गया, वंस यू आर डन विद 2 years ऑफ योर एमकॉम, उसके बाद इसको पढ़ना, यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम द स्क्रैच अगैन. हर एक के लिए बुक चाहिए रहेगी, हर एक टॉपिक खुद खुद से फिर पढ़ना पड़ेगा. इसलिए ट्राई करो एमकॉम के साथ साथ ही नेट जेआरएफ निकल जाए आप लोग का. ठीक है, दीज आर सम बुक्स, सम recommended बुक्स फॉर पेपर 2. इसमें भी सिमिलरली यू हैव लाइक कंप्लीट 10 यूनिट्स, इसमें सब में आपको मिल जाती हैं. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वुड लाइक, एंड यू कैन बाय दीज बुक्स. ये बुक्स आपको इजीली इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, एंड फ्रॉम योर बुक स्टोर्स ऑल्सो दीज आर अवेलेबल. यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर. कमिंग टू यूट्यूब चैनल्स, माई फेवरेट, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा है सब कुछ. सब पे सारा कंटेंट अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रीली अवेलेबल है. पीपल गेट कीप दीज थिंग्स. क्या कि आपका जो सिलेबस है, जो प्रिपरेशन है, वो फ्री में हो सकती है. क्यों? क्योंकि उनका नुकसान होता है. ये अगर हम खुद से बता दें, जो एजुकेटर्स हैं वो आके आपको अपना पैकेज सेल कर रहे हैं, एक तरफ वो बोल रहे हैं बाय माई पैकेज फॉर 10,000 अ ईयर, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई आपको ये आके बता दे कि वो सब तो फ्री में भी अवेलेबल है, देन इट्स अ लॉस फॉर ऑल द बिजनेसेस अक्रॉस द एजुकेशन मार्केट. तो कोई ये सब बताता नहीं है, बट आई डू नॉट वांट टू गेट कीप. आई हैव ऑलरेडी focused on these channels and got good content out of these channels. So it's very easy. आपको मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स पे ना मैराथन्स भी मिलती है. स्टार्टिंग तो आप बेसिक से करोगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ोगे. जब आपका रिविजन का टाइम आएगा ना, व्हाट यू डू इज यू गो टू दीज चैनल्स एंड फाइंड आउट द मैराथन्स. वो मैराथन होती है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की. उसमें आपका पूरा यूनिट का रिविजन एक बार में हो जाता है. अगर मैंने पढ़ लिया है ऑलरेडी, इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज थ्रू अ मैराथन. मैं इजीली उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाऊंगी. ऑल द टॉपिक्स विच आई हैव कवर्ड, बी इट पेपर 1 बी इट पेपर 2, सारी मैराथन्स भी अवेलेबल होती है, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ स्टडीड फॉर मैराथन्स ऑल्सो. ठीक है, तो पेपर 2 पेपर 1 दोनों यूट्यूब से भी मिल जाएगा, दोनों बुक्स में भी मिल जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग वहां से भी मिल जाएगा. Now coming to expected cutoffs, जो commerce I have qualified for management also, so I have put it up here. You people are eligible for commerce as well as management. Since you are enrolled in MCOM, go for commerce first, clear that exam, then if you feel like it, you can go for management. सजेशन हमेशा यही रहेगा अपने बैकग्राउंड से स्टिक होने के लिए. इवन दो एनईपी में हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. द मोमेंट यू पुट अ फुट apart from your career, apart from your basic course syllabus, people will question you. So always focus, always try कि आपका कॉमर्स में निकल जाए. ऑल्दो मैनेजमेंट का कट ऑफ कॉमर्स से थोड़ा कम होता है, बिकॉज मैनेजमेंट में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना कॉमर्स में है. ठीक है, तो ट्राई कॉमर्स का निकल जाए, एंड देन इफ यू वांट टू परस्यू, वांट टू टीच और समथिंग, यू कैन गो फॉर मैनेजमेंट ऑल्सो. ठीक है. Another thing, coaching. I get this question a lot. Lot of people are confused and they keep on asking कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं. Although I have already explained you कि मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली है, I'm still gonna say it's up to you. To each their own. आप लोग ने सुना होगा, अगर आपको लगता है आपको कोचिंग की जरूरत है, you should go for it. कोई बोलता रहे, कोई आके आपको बोलता रहे कि कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपका मन है लेने का, यू फील कि मैं कोचिंग लेने से इजीली पढ़ सकते हैं, मुझे इजीली कॉन्सेप्ट समझ हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, एंड आई कैन क्रैक द एग्जाम विद हेल्प ऑफ कोचिंग, गो फॉर इट. डू नॉट लिसन टू एनीबॉडी. एंड अगेन, इफ यू फील मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, आई एम गुड एट सेल्फ स्टडी, एंड मे बी you do not have that kind of money to invest, maybe you do not have that kind of time to invest, या फिर ऑनलाइन वैसे आजकल सारी कोचिंग्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे पैकेजेस यू कैन फाइंड ऑनलाइन.
स्टिल अगर ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हो, ऑनलाइन में भी इशू है, फॉर एग्जांपल इफ यू डू नॉट हैव वाईफाई कनेक्टिविटी, अच्छी वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये इश्यूज आते हैं कि आप ऑनलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ है, और इफ यू फील दैट यू डू नॉट वांट टू गो फॉर कोचिंग, you can always clear the exam with self study. There is no need of coaching. और मैं कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं हूँ इसका. I have so many friends who have cleared. I have so many batchmates who have cleared the exam without any coaching in their first attempts. They have cracked JRF. तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि कोचिंग लो या ना लो, आपकी मर्जी है. इफ यू फील लाइक इट, गो फॉर इट. इफ यू डू नॉट फील लाइक इट, डू नॉट गो फॉर इट. कोई आगे कुछ बोलता रहे, डू नॉट लिसन टू दैट. कमिंग टू सम टिप्स. अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, अपना नेट जीआरएफ की तैयारी अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस. आपका जो सिलेबस ऑनलाइन है, आई नो सबके पास आईपैड्स, लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल फोन सब कुछ है, मेरे पास भी है. ऑब्वियसली वी आर ऑल इन द सेम जनरेशन, सबके पास सब कुछ है. बट एक बार वो प्रिंट आउट अगर आप ले लोगे ना, वो हमेशा दिखता रहेगा आपको. दैट इज व्हाट आई डू, कि प्रिंट आउट लेके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, लाइक नाउ आई एम टीचिंग 3 बेसिकली सब्जेक्ट्स राइट नाउ. तो वो 3 सब्जेक्ट्स के भी ना सिलेबस मैंने ले रखे हैं प्रिंट आउट, एंड आई हैव केप्ट इट ऑन माय कबर्ड. मेरे को तो सिर्फ वो पढ़ाने हैं, तब भी मैंने उसको रखा हुआ है, जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे को पता रहे कि मैंने कितना कितना पढ़ा लिया है. ऑल्दो आई हैव ऑल द प्रेजेंटेशंस इन माय लैपटॉप, सारा उनका जो डेटा है दैट इज इन माय लैपटॉप, स्टिल आई हैव गॉट अ प्रिंट आउट एंड केप्ट इट हियर फॉर रेफरेंस. तो एक प्रिंट आउट 2 रुपए का, दैट इज व्हाट इट कॉस्ट्स. उसको आप लेके रखो अपने पास, और अच्छी जगह रखना है कबर्ड में. ऐसा नहीं कि बस रख दिया लेके बुक्स वगैरह में दबा दिया है कहीं. दैट शुड नॉट, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज. सेकेंडली, सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़ना है. एक बार दोनों पेपर्स का सिलेबस निकालो, दोनों को पूरा ढंग से पढ़ो. पढ़ने से क्या होगा ना, आपको पता चलेगा मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और वीक एरियाज कौन से हैं. जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन कि मुझे हायर एजुकेशन, पीडीई, आईसीटी इतना पसंद नहीं आता था, बट आई वॉज गुड एट मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन. ये सब दे ऑल फेल्ट लाइक अ केक वॉक टू मी. मुझे लगा ये तो सब बेसिक है, ये तो सब आता ही है, ये तो आना ही चाहिए मुझे ऐसा लगा वो सिलेबस देख के. बट ये सब देख के मुझे लगा आईसीटी एंड ऑल कि मुझे, आई वॉज गुड एट कंप्यूटर्स एट दैट टाइम ऑल्सो. स्टिल आई फेल्ट आई डू नॉट नो द टर्मिनोलॉजीज. मुझे इनके ना थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है आईसीटी के. तो आई अंडरस्टूड कि मुझे फोकस कहाँ देना है. अगर आप अपना फोकस एरिया समझ लोगे, अपना स्वॉट एनालिसिस तो हम सबको पता है ना, अगर हम अपना स्वॉट एनालिसिस में सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर लें अपनी, कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये स्ट्रेंथ है और ये वीक एरियाज है, इट्स लाइक हाफ ऑफ योर जॉब इज डन. कैसे? सबसे पहले मैंने क्या किया, आई वॉज गुड एट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल. सबसे पहले मैंने वही प्रैक्टिस करना शुरू किया. क्यों? मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सब्जेक्ट में, पेपर में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ. मुझे लगा कि हाँ यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो मुझे जब 6 यूनिट आती हैं, 4 तो मैं पढ़ ही लूंगी. ऐसा थोड़ी है कि मैं 4 भी नहीं पढ़ पाऊंगी, कंपेयर टू यार 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, क्या करना है पता ही नहीं चल रहा. दैट शुड नॉट हैपन. तो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करके ग्रेजुअली मूव टू योर डिफिकल्ट यूनिट्स, जो आपको डिफिकल्ट लगती है. एंड डिफिकल्ट का मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है इसकी कि डिफिकल्ट सबके लिए ये चीज डिफिकल्ट है. नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ आपको अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है, आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए नहीं है, और मे बी मेरे लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए नहीं है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो डू नॉट लिसन टू दोज पीपल हु टेल यू कि यार ये तुझे क्यों नहीं आता. मैथमेटिकल रीजनिंग, आई हैव सीन पीपल टेलिंग अदर्स, यार तेरे को मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं आता, तूने स्कूल कैसे क्लियर किया यार, स्कूल में भी तो सिखाते हैं सब. नो, दैट्स नॉट द थिंग. स्कूल में उसको आता था, he or she was into maths, or he or she just felt the need or the pressure to study, but अब उसको नहीं लग रहा है, उसको नहीं आ रहा है समझ क्या करना है, and that is totally fine. So always focus on what is correct for you or how you can move forward. Do not listen to others in this thing. ठीक है? Coming to some tricks, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, people do not give importance to both the papers. उनको लगता है क्या कि यूनिट 1 या तो पेपर 1 पे फोकस देते हैं या पेपर 2 पे. जैसे अभी एमकॉम चल रहा है,
तो व्हेन आई वाज इन एमकॉम, मैंने सेकेंड ईयर के बाद दिया था पेपर, बेसिकली सेकेंड ईयर का पेपर मेरा था, एंड साइमल्टेनियसली आई हैड दिस नेट जीआरएफ एग्जाम। मुझे पेपर के बारे में तभी पता चला था बेसिकली कि ऐसा कोई एग्जाम होता है फॉर पीएचडी. I wanted to pursue PhD, so I figured out, tried online what all can be done, how can I get into PhD, and I got to know that I have to clear this exam. नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, आई कैन क्लियर इट, एंड दैट्स वन वे टू गेट इनटू पीएचडी. अनदर इज टू क्रैक द पीएचडी एंट्रेंस. So that is how I figured out कि अच्छा ऐसा कोई एग्जाम होता है and I should do that. So I started searching for the syllabus. I had no idea what I am supposed to do. And the most foolish thing which I did was I studied paper one solely. What I used to think is कि paper one is the level one and paper two is the level two. If I clear paper one, like that's a pre exam जो होता है. If I clear paper one, I will have time to study like 2-3 months gap. 2-3 महीने के gap में I'll study paper two and give paper two. I used to think it's a pre versus mains thing. So I used to study for pre, and it was like until I think a month or so. तब तक मैं सिर्फ पेपर वन पढ़ रही थी. उसके बाद मुझे पता चला क्या कि पेपर टू भी होता है, साथ में होता है. There is no such thing as pre and mains in नेट जीआरएफ एग्जाम. साथ ही 3 घंटे बैठ के मुझे पेपर वन पेपर टू दोनों देना है. Well, that is the most foolish thing someone can tell you. But the moment I realized I have to study both the papers, I started giving importance to paper two. क्यों? पेपर वन मेरा आधा ऑलरेडी कवर हो चुका था. I started with paper two, emphasized on the weak areas, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा that I have missed out on my paper. अब तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि पेपर टू भी पढ़ना है. That is the thought I had. And I started studying paper two at that time. और उसमें भी मेरी स्ट्रैटेजी उल्टी. क्यों? मैंने क्या किया, वीक एरियाज पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज पढ़ने का टाइम चला गया है. दैट इज ऑलरेडी गॉन. क्योंकि पेपर कोविड में ना आई थिंक 2 या 3 बार डिले हुआ था. जून में होना था एंड एक्चुअली अक्टूबर 17 को शायद हुआ था पेपर. जून से अक्टूबर तक का टाइम. तो मैंने क्या किया, वीक से स्टार्ट किया एंड स्लोली पेपर की डिले की न्यूज आई. स्टार्टेड गोइंग अहेड विद माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग. So you should not do this. You have so many source contents. You have so many people to guide you. You can take coachings. You cannot. It is up to you. If you do not want to take coachings, you can come to me. You can contact other people. There are so many mentors in today's date. They can easily and very easily, I would say, guide you कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है. तो give importance to both the papers. ठीक है. Secondly, one thing which everybody tells us कि सारी यूनिट्स पढ़नी है. 10 यूनिट इसकी, 10 यूनिट इसकी, 20 की 20 यूनिट्स आनी चाहिए. बट नहीं होता है. हम इंसान है, हमारा कोई सुपर कंप्यूटर्स तो नहीं है ना हमारे ब्रेन में कि सब याद हो जाएगा, सब याद ही रहेगा. दैट इज नॉट हैपनिंग. एंड इफ इट्स हैपनिंग विद यू, देन यू आर वेल, टू गो अहेड. देन ऑब्वियसली यू कैन क्लियर जेआरएफ इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. बट अगर नहीं हो रहा, यू कैन स्किप 1 यूनिट फ्रॉम बोथ. मैंने अभी जैसे कट ऑफ दिखाई आप लोग को, कहीं पे भी 300 आउट ऑफ 300 तो नहीं दिखा होगा, 250 भी नहीं दिखा होगा. एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में से आते और 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में से आ सकते. 15 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है आपके छोड़ सकते हो. आप छोड़ सकते हो इन द सेंस कि आपको उसके बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आइडिया है, उसके बेसिस पे आपने वो क्वेश्चन मार्क कर लो. दैट यू कैन डू वेरी इजी. I have done that myself. I have seen other people telling me कि ऐसे नहीं गाइड करना चाहिए बच्चों को, उनका पेपर क्लियर नहीं होगा इस वे में. मैं बोलती हूँ जब मेरा हो गया तो उन लोग का क्यों नहीं होगा. मैंने कोई अलग से तोप तो नहीं मारी थी ना. I studied the same syllabus, तो उन लोग का भी हो जाएगा. रेस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी यूनिट छोड़ दो, उसके बारे में कुछ ना पता हो. दैट शुड नॉट हैपन. इन डेप्थ पढ़ने का टाइम नहीं है ना, या फिर इन डेप्थ समझ में नहीं आ रहा है. बिकॉज इंडियन लॉजिक कईयों को मैंने देखा डिफिकल्टी आती है, और जिनकी मैथ्स वीक है उनको मैथमेटिकल रीजनिंग या डीआई में आती है. सिमिलरली जिनकी इंग्लिश वीक है उनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आती है. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद दीज यूनिट्स. तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ, यू कैन स्किप दीज यूनिट्स. इनका प्रेशर, इनका टोल सर पे लेके नहीं घूमना है कि यार ये यूनिट तो आती ही नहीं. फोकस ऑन इम्प्रोवाइजिंग योर अदर 9 यूनिट्स. जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको स्ट्रॉन्ग करो,
ताकि आपके जैसे एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में से, तो आपको पता हो कि मेरे 5 ठीक होंगे। ऐसा स्कोप ही नहीं छोड़ना कि 4 ही ठीक होंगे। अगर आप स्कोप 4 का छोड़ रहे हो, यू कैन डू विथ 1 और 2 यूनिट्स। बाकियों में यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा बिकॉज मुझे बाकी यूनिट्स आती है। एक आध यूनिट फ्रॉम बोथ द पेपर्स यू कैन स्किप, उसमें भी थोड़ा बहुत इतना मतलब पता हो कि तुक्का लगा सके, वो होता है ना गेस वर्क वी कैन डू। गेस वर्क तक का आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं, सिलेबस ही नहीं देखा और चले गए हैं बस, दैट शुड नॉट हैपन। फिर तो आपका लक वाला केस हो जाएगा। इफ यू आर लकी इनफ यू कैन क्लियर, इफ यू आर नॉट लकी इनफ तो फिर नहीं होगा क्लियर। तो दैट स्कोप वी डू नॉट लीव, बट हाँ एक आध यूनिट दोनों पेपर्स में से स्कोप इतना रहता है कि आप छोड़ सकते हैं। Another thing, people keep on reading and reading. They do not understand कि भाई PYQs करना important है। आपको पेपर का पैटर्न तो सिलेबस तो पता चल गया, बट जो एक्चुअल पेपर आने वाला है वो कैसे पता चलेगा? उसी से तो पता चलेगा ना जब आप PYQs देखोगे। Practice as many PYQs as you can. Simply बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आई डोंट नो इफ पीपल हैव टोल्ड यू दिस और नॉट, आई हैव सीन क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड। मैं जब PYQs प्रैक्टिस करती थी आई यूज्ड टू थिंक अरे ये तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना, व्हाई इज इट कमिंग बैक? एंड व्हेन आई चेक्ड डिफरेंट ईयर्स में सेम क्वेश्चंस पूछे गए और सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए। सो ऑलवेज फोकस ऑन PYQs। आई थिंक आप 10 इयर्स के अब करना पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली इट इज सेड कि आप 10 इयर्स के PYQs कर लो एंड इट इज इनफ, बट आज की डेट में दैट इज नॉट फीजिबल। रीजन बीइंग आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं ना सब में पेपर 1 अलग आता है। मतलब सिलेबस तो वही है बट सबको सेम नहीं दे सकते ना, बिकॉज इट इज ऑन डिफरेंट डेट्स। तो सबका जैसे एक A B C D ऐसे डिफरेंट सेट्स आते हैं। तो आप मुझे लगता है ना 3-4 साल के वो कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। अभी रिसेंट के 3-4 साल के आप PYQs कवर कर लो, बहुत है। कोई 10 साल के PYQs करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है आई वुड से। ठीक है। अनदर थिंग, न्यूमेरिकल से लोग या तो घबराते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें दोनों ही नहीं करना है। अगर हम घबराते हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमें पता है मेरा तो हो जाएगा तो प्रैक्टिस कर लो। आपको ऑलरेडी पता ही है ना हो जाएगा, कीप प्रैक्टिसिंग। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला उसमें। हाँ आपका आधा घंटा दिन का चला जाएगा मैक्सिमम उसमें, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो। बट यू शुड नॉट फॉरगेट प्रैक्टिस, क्योंकि आपका DI और मैथमेटिकल रीजनिंग होता तो मुझे तो इजी लगता है बेसिकली, काफियों को डिफिकल्ट भी लगता है, बट वो अपने ऊपर रहता है कि आपको क्या इजी लगता है क्या नहीं। सो इवन इफ यू फील लाइक इट इज इजी यू शुड स्टिल प्रैक्टिस। और अगर डिफिकल्ट लगता है तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम इजीली। लास्टली, बहुत सारे रीसेंट पेपर्स में करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और रैंकिंग्स भी पूछी गई, बट 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें निकालना है कि हम करंट अफेयर्स भी देख लें और रैंकिंग्स भी देख लें। रैंकिंग्स याद करना पॉसिबल नहीं है। SDG का, किसी कंट्री का कौन सा रैंकिंग किस ईयर में था, नॉट पॉसिबल। बट इस साल एनवायरमेंट डे की क्या थीम थी और पिछले साल क्या थी वो तो हम याद रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हम याद रखें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। क्योंकि पहले मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में इतना ज्यादा नहीं था, बट आज की डेट में करंट अफेयर्स और रैंकिंग्स में से क्वेश्चनिंग आती है। बट इसके लिए भी अगेन इफ यू आर नॉट गुड विद GK, नॉट गुड विद करंट अफेयर्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं, दैट टू डू द गेस वर्क इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट सिंपली। गोइंग अहेड विद स्ट्रैटेजी, अभी वी आर इन सितंबर, ऑलमोस्ट सितंबर लाइक एंड होने वाला है, एंड एग्जाम जो पिछले टर्म का था दैट वाज लेट, दिसंबर में होता है, मे बी दिसंबर की जगह जनवरी में हो सकता है। देयर इज नो ऑफिशियल अपडेट, बट 3 महीने आपके लिए इनफ है। कभी भी आप 3 महीना प्रैक्टिस कर लो, आपका JRF इजीली निकल जाएगा। मतलब उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, 2 महीने हम पढ़ेंगे और लास्ट का 1 मंथ हम रिविजन करेंगे। 2 महीने जो पढ़ेंगे वो ध्यान से टाइम निकाल के तब पढ़ेंगे, उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, आज तो थक गए हैं, आज तो ना फंक्शन है, आज तो वहां जाना है, अच्छा आज ना शॉपिंग करने चलते हैं, अरे नई मूवी आई है वो देखने चलते हैं। दैट्स नॉट हैपनिंग।
2 महीने जो वो है ना, वो लग के पढ़ना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ये 3 महीना 3 साल में भी कवर नहीं होंगे आपके। बिकॉज आई एम सीइंग पीपल, मेरे तो इतने बैचमेट्स, लाइक आई डिड माई एमफिल विद द सेम पीपल एंड आई एम डूइंग पीएचडी विद द सेम पीपल बिकॉज आई एम द सेम डिपार्टमेंट सिंस एमफिल. So I am seeing people who have been giving the exam so many times. They have cleared NET like 5, 6, 7 times. They are still not able to clear JRF. And the people whom I am in good contact with, जो मेरे अच्छे friends हैं, I ask them honestly, what is the issue? भाई अगर पेपर 1 में कुछ इशू है, I can easily help you with it. मेरे अच्छे friend है, why will I not help? And the reason they give me is they are not able to devote time. उनके अंदर भी बुद्धि उतनी है, मेरे अंदर भी उतनी है. उस टाइम पे मैंने एमकॉम के साथ साथ पढ़ के पेपर निकाल लिया, मेरे पास पूरा टाइम था. आज की डेट में मुझे कोई बोल दे नया पेपर पढ़ने के लिए, आई डू नॉट हैव द टाइम बिकॉज आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग माई रिसर्च, देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आई एम कॉट अप विद. सो टाइम जब आपके पास हो तब आपने पढ़ना है, बट 2 महीने लग के पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है. दिस इज द मिनिमम विच आई एम टेलिंग यू. लोग बोलेंगे कि जरूरत नहीं होती है, सीधा क्रैश कोर्स कर लो 15 दिन का, उसमें भी हो जाता है. और लोग ये भी बोलेंगे कि 2 महीने में कुछ नहीं होता, 2 साल पढ़ना पड़ता है, 6 महीने पढ़ना पड़ता है, 1 साल पढ़ना पड़ता है. इजीली हो जाता है अगर आप ढंग से टाइम डिवोट कर रहे हो. 2 महीने बहुत इजीली आपका पेपर निकल सकता है. उसकी भी स्ट्रैटेजी आई हैव मेंशन. 2 घंटे पेपर 1 का करना है, 2 घंटे हमें पेपर 2 पढ़ना है, 1 घंटा न्यूमेरिकल के लिए रखना है और 1 घंटा पीवाईक्यूज. न्यूमेरिकल पीवाईक्यूज नहीं छोड़ना है, किसी भी केस में हम नहीं छोड़ेंगे. What you can do is, initially अगर आपको लगता है कि you are not in the phase of doing PYQs, you can do 2.5 hours for paper 1 and paper 2 each. 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन पढ़ने के बाद you can start doing PYQs. क्योंकि PYQs आपको यूनिट वाइज भी मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है ना कि आपके सिर्फ प्रॉपर जो पेपर पैटर्न पे आता है कि 100 क्वेश्चंस का सेकेंड पेपर एंड 50 का फर्स्ट पेपर सिर्फ उसी पैटर्न में अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता है. ईजिली आपको यूनिट वाइज मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया मान लो, तो रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं पीवाईक्यूज ढूंढ लूँ, 10 दिन मैंने पढ़ लिया मान लो, 2 यूनिट्स मेरी हो गई. या इफ आई एम स्टडिंग एट अ स्लोअर पेस, आई हैव एनफ टाइम, आई हैव 6 months टू प्रिपेयर, और मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, तो मैंने 10 दिन मान लो सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड ही पढ़ा, 10 दिन में तो कवर हो ही जाएगा ना. उसके बाद तो क्या बचेगा उसमें. देन आई कैन डू पीवाईक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. Simultaneously, I can start teaching aptitude, communication, ICT, higher education, whatever. जो भी मुझे करना है, simultaneously I can go ahead with that one. And then practice PYQs for that. Secondly, numericals daily करते हैं. इससे क्या होगा, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग DI दोनों कवर हो जाएगा फर्स्ट यूनिट का. सिमिलरली जो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर 2 में है, कीप प्रैक्टिसिंग डेली. उसके लिए ना अलग से टाइम जो ये हमने निकाला ना, लेट्स सपोज हम 1 वीक 1 यूनिट को दे रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते करते ना वो यूनिट का 1 वीक खत्म हो जाएगा. वो हमें अलग से डिवोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो करते ही आ रहे हैं ना. अब DI मान लो मैंने 15-20 DI सेम तरह के सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं ना. जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई एम एबल टू सॉल्व देम एंड विद इन मतलब अच्छे, मतलब मिनिमल टाइम में मैं सॉल्व कर ले रही हूँ उनको. फिर मेरे को वो 1 हफ्ता देने की जरूरत नहीं है ना उस यूनिट पे. तो नन ऑफ दिस इज गोइंग टू वेस्ट. मतलब कहीं भी आपका कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है. ठीक है. कमिंग टू लास्ट मंथ, अगर 3 महीने के हिसाब से हम देख रहे हैं, अपकमिंग साइकिल के हिसाब से, लास्ट मंथ इज फॉर योर रिविजन. उसमें आपने जितना पढ़ लिया, स्टार्ट रिवाइजिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू हैव रेड. इससे क्या होगा, जितना भी हमने यूनिट वाइज पढ़ा, मैं 1 यूनिट के बाद दूसरे पे आई तो मुझे याद रहेगा मैंने फर्स्ट में क्या पढ़ा. बट धीरे धीरे जब मैं वो 6, 7, 8 यूनिट पे आऊंगी ना, आई फॉरगेट कि फर्स्ट यूनिट में क्या किया था. हमारा इतना आज की डेट में कॉन्सेंट्रेशन, रिटेंशन पावर नहीं रहा है कि हम सब कुछ याद रख सकें. रिविजन इज मस्ट, बहुत जरूरी है. लोग हमेशा ना मिस कर देते हैं ये चीजें. क्या करते हैं ना, पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं पेपर तक. डोंट डू दैट. ट्राई टू वाइंड अप. आपने वाइंड अप कर लिया, उसके बाद आप रिविजन का टाइम अलग रखो. 10 दिन में 1-1 यूनिट, 1-1 दिन में. बहुत इजीली अगर आपने नोट्स, अपने हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, बहुत इजीली आप उससे रिवाइज कर सकते हो. हैंडमेड नोट्स नहीं बनाए हैं, यू गॉट द नोट्स फ्रॉम योर कोचिंग्स, उससे रिवाइज हो सकता है 1 दिन में 1 यूनिट. वो भी नहीं है, गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर मैराथॉन्स. श्योर शॉर्ट थिंग है, मैराथन सर्च करो. अब कई लोग, इसमें भी एक चीज होती है,
कई लोग क्या करते हैं ना, मैराथन वर्ड सिर्फ कीवर्ड ऐसी हो, तो आप लोग को पता ही होगा ना, हाउ डू वी यूज दोज, सिर्फ मैराथन लिख देते हैं। होती कितनी देर की? आधे घंटे की। आधे घंटे में कोई यूनिट रिवाइज नहीं होती, इतना उसमें कंटेंट रहता है ना आपका, व्हेन यू विल चेक द सिलेबस यू विल नो। तो वो मैराथन नहीं करनी है हमें कि पूरे 24 घंटे में से हमने सिर्फ आधा घंटा एक यूनिट को दिया और सोचा मेरी रिविजन हो गई। दैट इज नॉट हैपनिंग। वो आपने मैराथन वो वाली करनी है जिसमें 3-4 घंटे का टाइम होगा आपका यूट्यूब वीडियो का, ताकि उसमें मेजर टॉपिक्स आपके कवर हो जाए। एंड देन ऑब्वियसली मेक श्योर दैट यू मेक योर हैंडमेड नोट्स। नहीं पसंद है, यू कैन मेक इट ऑन वर्ड्स, वर्ड डॉक्यूमेंट में बना लो, प्रेजेंटेशन फॉर्म में बना लो, चार्ट्स बना लो, हैंड से यू कैन मेक स्मार्ट चार्ट्स ऑल्सो, सिर्फ पुट अप द मेजर पॉइंट। माइंड मैप्स सुना होगा ना हम सब ने, माइंड मैप्स बना लो। रिविजन में इजी रहता है, रिकॉल करने में इजी रहता है कि क्या क्या पढ़ लिया है। ट्राई टू मेक एज मेनी एज यू कैन। नहीं होता है, डू नॉट टेक अ टोल ऑफ दिस थिंग एज वेल। किसी भी चीज का लोड लेना नहीं है अपन ने। अपन ने क्या करना है, चिल होके पढ़ना है, फोकस रखना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैराथॉन्स कर लो, मैराथन से सब रिवाइज हो जाएगा। सेम विद पेपर 2, 10 दिन पेपर 1 रिवाइज किया, 10 दिन पेपर 2 रिवाइज किया, अपन के पास बचे 10 दिन और 3 महीने में से। 5 दिन हमने क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, पूरा 3 घंटा बैठना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट ले लिया, अब खुद से कर रहे हैं, सुबह करने लगे, 5 क्वेश्चन करे, कुछ और आ गया, कोई और आ गया बुलाने, फोन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, स्नैप चैट बनानी याद आ गई। डू नॉट डू दैट। 3 घंटे का प्रॉपर अपना रूम लॉक करके टाइमर सेट करो 3 घंटे का, उसमें प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करो। जितना आता है उतना करो, जो नहीं आता है गो विद गेस वर्क। कंप्लीट पेपर करके 3 घंटे के अंदर हमें इंश्योर करना है कि हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है, डीआई है, कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ना पड़ता है इन सब में। बाकी क्वेश्चन तो पढ़े और आंसर सीधा सीधा मार्क कर दिया फटाफट फटाफट, डीआई वगैरह में टाइम लग जाता है। तो अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लग रहा है। 3 घंटे से मान लो 3.5 घंटे लग रहे हैं, यू विल फिगर आउट कि मेरे को कहाँ कहाँ टाइम लगा, एंड वर्क ऑन दोज एरियाज। नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करोगे और नेक्स्ट में और अच्छा करोगे, एंड बाय द टाइम यू रीच योर एग्जाम तो बहुत ही अच्छा करोगे फिर। इसके बाद 5 दिन के बाद 3 दिन लेटेस्ट जो मैंने अभी बताया, करंट अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो पूछी गई हैं रिसेंट एग्जाम्स में, उस पर फोकस करेंगे हम। और लास्ट के 2 दिन हम रिलैक्स करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने सब कर लिया 3 महीने में से, 3 महीने से भी 2 दिन बच गए हमारे पास, हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे। इफ इट हॉन्ट्स यू कि हाँ मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं पढ़ रही, रिवाइज एनीथिंग यू लाइक, एंड इफ यू आर अ चिल पर्सन यू कैन स्टे विदाउट रिवाइजिंग। आपका सब हो गया है उसके बाद, ऐसा नहीं कि किया भी नहीं है सीधा रिवाइज मतलब रिलैक्स करने बैठ गए, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो लास्ट के 2 दिन हमने सिर्फ आराम करना है। Now, if anyone of you would like, you can connect with me on Instagram and LinkedIn. I post about NET, JRF, PhD, all these things on my Instagram as well as LinkedIn. If you would like, you can connect with me. If not, it's up to you. And another thing, I am announcing my YouTube channel. I will be taking short classes. I do not have a lot of time, so I'll not be able to, put up a lot of marathons and stuff on my channel. But short topics I'm planning to put up on this YouTube channel of mine. So if you would like, you can subscribe. This is the first. I just made up the channel before the session. There's nothing on the channel as of now. Basically, I am going to post. I will start posting. That is my plan. Coming to any doubts you have, anything you are not able to understand, any confusions with regards to what I said, what anybody else has told you, anything you have, you can ask. Thank you, ma'am, for your insightful and informative guidance on preparing for the NET JRF exam. Your expertise and experiences have been invaluable to us, and we are deeply grateful for your time and willingness to share your knowledge with us. Now, students, it's your time. If you have any questions or need further clarification on any aspect of NET JRF exam, please don't hesitate to ask. You can type your queries in the chat box, and ma'am will be happy to address them. Thank you, ma'am. So
So I see Arushi has asked, is the syllabus for commerce and management same? No. Syllabus is totally different. And I would suggest go for commerce first. Management ka, see, I myself, when I appeared for management exam, somebody just asked me कि यार तेरा commerce का है, management में नहीं है तेरा net. और उस टाइम डेडलाइन थी मैनेजमेंट, ये जो नेट एग्जाम का फिल करने का ऑप्शन होता है, I like was on the deadline of filling the exam form. So I just filled the exam, did not study anything for management. Still, I was able to clear my net. काफ़ी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं. पेपर वन मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, मैंने स्क्रैच से पढ़ा था. मैनेजमेंट में भी आई वॉज वेल वर्स विद HRM, OB, marketing, management, all these things I was well versed with. And then I had the guesswork. So I was able to clear. तो focus on clearing commerce first. उसकी कट ऑफ भी हाई होती है, आपका सिलेबस से भी मैच करेगा. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो. तो फोकस हमें कॉमर्स पे ही रखना है. एक बार कर लो कॉमर्स, उसके बाद मैनेजमेंट करो, इको करो, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन. If anybody else has any question, you can put it up. You want the slide. Okay, I'll just pass it on to Tarun and he'll share it in the group. For YouTube channel, for slides, recommended books, YouTube channels, you'll find everything. I do not have any problem. I'll put it. Ma'am, I have a question. Mhm. I have appeared in the recent June net exam, or in the recent net exam, it was June attempt was very good because most of the questions were from IB and marketing background. That is my domain. That is my specialization. But when it is reconducted, तो रिसेंटली रिकंडक्ट उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज मेजरली फाइनेंस के क्वेश्चन थे और काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए गए थे. फॉर्मूले वाले क्वेश्चन तो मुझसे हो गए, बट जो काफ़ी डीप इन डेप्थ क्वेश्चन थे वो मुझसे नहीं हुए. तो फॉर दैट हाउ कैन आई कैन मैनेज, बिकॉज मेरा मेजर जो है फाइनेंस नहीं है, सो उतना आइडिया नहीं है मुझे फाइनेंस. See, this is not how it works. Because आपने जैसे मैंने भी सिलेबस दिखाया, and otherwise too you would have seen the syllabus. कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, it in itself is very vast, very different specializations we have, lot of things are there, and in specializations also we have different categorizations. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन फाइनेंस की हो गई तो फाइनेंस इज इन इटसेल्फ a huge domain. उसमें उसके अंदर also you can figure out so many specializations, shorter specializations, basically smaller brackets, and you can find so many categories. Like I am researching on FDI. FDI तो foreign direct investment हो गया. उसके अंदर भी I got to know that there are two different branches. How? Inward FDI, outward FDI. पढ़ने में दोनों इजी लगता है, समझ में दोनों इजी आता है कि जो इनसाइड हमें रिसीव हो रहा है इनसाइड इंडिया, दैट इज आवर इनवर्ड FDI. जो हम भेज रहे हैं बाहर, दैट इज आउटवर्ड. But when I studied the theories, when I started reading the in-depth of the both of them, I got to know so many different aspects about both. तो ऐसा नहीं है कि आपका जो मेजर है आप सिर्फ उसको पढ़ोगे. You have to study all the units. पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा. ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर HR से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तो पेपर क्लियर हो गया, फाइनेंस से आए तो नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. You will have to study. And since you are good with HR, OB and stuff, focus more on the questions you were not able to attempt. जिसने भी attempt दे दिया है, it is for everyone. Figure out your weak areas. जो आप नहीं पढ़ पाए कर पाए थे पिछली बार, नहीं पढ़ पाए थे. Focus more on those areas. And secondly, अपना जो आता है वो भी पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में लोग यही करते हैं गलती कि जो नहीं आता था सिर्फ वो पढ़ के चले जाते हैं, अपना पढ़ा हुआ फिर भूल जाते हैं कि मेरे को जो मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ना वो ही नहीं हो रहा है बाद में. दैट शुड नॉट हैपन. Tarun, do you want me to take up the questions from the comments, or can somebody just read out the questions one by one? So, ma'am, can I give both the exams for commerce and management in this December attempt only, or I have to give the management exam in the next attempt?
No, no, you cannot attempt two exams simultaneously. आप एक बार में तो एक ही दे सकते हो. And there's no hard and fast rule. It's just that I had time. I was in my MPhil, and then somebody just asked me, and I felt कि हाँ यार management भी दे सकते हैं. ऐसा कोई बुरा नहीं है management देना. So I just gave the exam. There's no hard and fast rule that you have to give both. Focus on clearing one exam at a time. एक हो जाए, उसके बाद दूसरे का goal setup करना है. And simultaneously दो में appear कभी नहीं होना है. It is not legally allowed. Okay. Ma'am, syllabus is too vast, difficult to make notes of each and everything. And in HRD, we have lots of sequence, how to make it memorize. देखो, इसके लिए तो सिंपल यही तरीका है, जो भी टाइमलाइंस है उसको आप नोट करते जाओगे. जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्ट्स आए, मेक निमोनिक्स आउट ऑफ दोज एक्ट्स. नहीं बना पाते हो, खुद से इतना क्रिएटिव माइंड नहीं है, इतना टाइम नहीं है, खुद से नहीं बना पा रहे, गूगल कर लो, सारे निमोनिक्स अवेलेबल है. एवरी फैकल्टी इज टीचिंग विद निमोनिक्स. निमोनिक्स से याद रखना आपके लिए ईजी होगा. सिमिलर इज विद द केस विद एमडीजीज. एमडीजीज कैसे याद रखने हैं, एसडीजीज कैसे याद रखने हैं, हायर एजुकेशन में कैसे याद रखना है, आईसीटीज का बिट्स बाइट्स एमबी जीबी, सब चीज़ों के निमोनिक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. मेक अ नोट ऑफ दोज एंड स्टडी विद दोज. और जहाँ पे भी टाइमलाइंस है ना, मेक नोट्स ऑफ दोज. और वो ना बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं बनाना है. डिस्क्रिप्टिव आप बनाना चाहते हो बनाओ, एक अलग से पेपर पे आपने टाइमलाइंस एक जगह लिख लेनी है, ताकि आपको याद रहे कि किस किस मतलब एरा में क्या क्या चीजें हुई है. क्योंकि आप 2 बार 3 बार उसको पढ़ोगे ना, आपको यहाँ पे सेट हो जाएगा. उसके बाद आपको पेपर में करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एमसीक्यू है ना, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है ना. एमसीक्यू में यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन से में क्या करना है. Ma'am, the cutoffs vary in every attempt. Also, I want to ask if we have cutoffs separately for both the papers or the overall score is considered. कट ऑफ सब में डिफरेंट होती है, बट इट्स मोर अबाउट आपका पेपर कितने लेवल का आया है. इफ इट इज वेरी इजी, जैसे अभी हुआ था जून वाला, जून अटेम्प्ट वाज रियली इजी. आई गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम सो मेनी पीपल कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है. एंड जब उसको सीबीटी में किया गया, व्हेन इट वाज टोल्ड दैट द पेपर लीक, समथिंग वाज देयर और नॉट, एंड देन पेपर वाज स्क्रैप्ड, और फिर से पेपर हुआ. आई दोज पीपल जो बोल रहे थे ना कि पेपर बहुत इजी था, दे वर द वंस टेलिंग मी यार नेट भी नहीं निकलेगा इस बार. तो पेपर आपका डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपकी कट ऑफ सेट होती है. आपकी कट ऑफ कभी भी सेम नहीं रहेगी, दैट इज फॉर श्योर. बट हमें फोकस यही करना है कि हम एज मेनी क्वेश्चंस करेक्ट हम कर सकें. लाइक 80 आई थिंक आउट ऑफ 100 फॉर फर्स्ट पेपर, एंड सिमिलरली 160. 240 इज अ गुड स्कोर आई बिलीव. 240 का टारगेट रखेंगे, 230 भी आ जाएगा तो भी हो जाएगा. और आपने एक और चीज पूछी थी, कट ऑफ सेपरेटली होती है या ओवरऑल. आपकी हमेशा ओवरऑल कट ऑफ होती है. जो मैंने स्लाइड दिखाई उसमें भी यू वर एबल टू सी आपकी दोनों पेपर्स की इकट्ठे कट ऑफ आती है, टोटल मिलके आती है. दैट इज व्हाई आई एम्फेसाइज्ड ऑन द पॉइंट कि दोनों पेपर्स पढ़ने ही हैं. Ma'am, which book you have preferred for paper 1 in your exam? I was not having the books. I told you I was starting in COVID-19 during that time. I did not have access to any books. I focused solely on the online, that to free content. कोई paid subscription नहीं लिया था. There are so many people using my name कि this she took coaching from this platform, from this particular educator. I did not. That is the honest opinion I have. That is the honesty I have. I'm telling you. I did not refer to anything. But I have read the content from these books which I'm recommending. इनमें majority आपका cover हो रहा है, और ऐसी कोई भी book नहीं मिलेगी आपको जिसमें सब cover हो जाए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता ना कि पेपर में क्या आएगा. There are so many things. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक बुक से सब कवर हो जाए. दैट इज वाई PYQs इज द थिंग फॉर यू. PYQs करते करते हमें आइडेंटिफाई यही करना है. PYQs करने का तरीका सही यही होता है. क्या आपका अगर आंसर ठीक भी हो गया है ना, चार ऑप्शन है, मान लो तुक्का लग गया, ठीक भी हो गया, बट अगर आपको वो टॉपिक नहीं पता है, मेक अ नोट ऑफ दैट और वो टॉपिक पढ़ना है. PYQs सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए नहीं होता है.
आपके जो मेजर टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जो आपकी बुक में कंटेंट में कवर नहीं हुआ है ना, वो सब भी आपको उससे आइडेंटिफाई करने हैं। पीवाईक्यूज इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, एक यूनिट करो, उसके पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो। डू नॉट वेट फॉर द एंड कि हम सब एंड में कर लेंगे। I think ma'am मैम all इज इट doubts are पॉसिबल clear. कि एक जगह Okay. सारी यूनिट्स के सेपरेट पीवाईक्यूज मिल जाए? फॉर एग्जांपल पेपर 2 में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है तो उसका सेपरेट यूनिट मिल जाए, पेपर 2 का अलग मिल जाए, इस तरीके से पॉसिबल है? हाँ, फ्रीली अवेलेबल है यूनिट वाइज पीवाईक्यूज। जॉइन टेलीग्राम। टेलीग्राम आप ऐप है, इंस्टॉल कर लो इफ यू डू नॉट हैव इट। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द चैनल्स। बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं। यूनिट वाइज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाले हुए हैं सारे पीवाईक्यूज। Unit wise also you will find, year wise you will find, shift wise you will find everything. आज की डेट में तो everything is freely available, I mean. And if you are not able to find, if you do not have the time, the resources कि इतना दिमाग लगाओ उसमें, so you can buy also. बहुत reasonable rates पे PYQs मिल जाते हैं unit wise. Ma'am, let's say I have cracked JRF, so can I do my PhD with being an AP simultaneously, or am I supposed to do my research only? Okay, that's like something far of question. अभी तो पढ़ ही रहे हैं JRF के लिए हम लोग. Still, I would tell you, देखो कैसे रहता है. Initially, when you join PhD, first things first, आपको अगर JRF avail करना है, you have to join full time PhD. Part time PhD में आपको JRF नहीं मिलता है. Full time PhD हम join करेंगे, उसी में JRF मिलता है. Full time में if you have joined universities like IGNOU or maybe you are in DU financial studies department में हो, वहाँ पे क्या होता है, you have to be there in the department throughout the day. आपका 9 to 5, 10 to 5 इस तरह से attendance mark होता है. तो उस केस में यू विल नॉट हैव द बेसिक टाइम, मतलब उसी टाइम पे तो हमें पढ़ाना होगा ना. तो अगर आपका ऐसा है, यू विल नॉट फाइंड इट. इफ यू आर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी ना, DU में नाउ वी हैव दिस अटेंडेंस सिस्टम. आई रिसेंटली गॉट टू नो अबाउट इट. So you have to mark the attendance. Basically, you have to visit the department once every day to mark your attendance that you were present. It is the case when you are availing JRF. अगर आप JRF अवेल नहीं कर रहे हो, देन द इनिशियल 1 year कोर्स वर्क में आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, लाइक 75 और सो. उसके बाद में इफ यू डू नॉट गो डेली देन इट्स फाइन, बिकॉज आई माई सेल्फ डू नॉट गो टू माई डिपार्टमेंट एवरी डे. इतना टाइम भी नहीं होता है, इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता है. एंड मोर ओवर देयर इज नो वर्क कि मैं डेली जाके वहाँ क्या करूँ. ठीक है, तो अगर आप JRF अवेल कर रहे हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फुल टाइम PhD होना चाहिए. सेकेंडली, आपका सुपरवाइजर आपको अलाउ करता होना चाहिए फॉर डूइंग एनीथिंग यू वांट. कुछ भी करना है, इवन इफ इट्स जस्ट लाइक गिविंग प्राइवेट कोचिंग. अगर आप अपने घर पे बेसिक प्राइवेट कोचिंग किसी को दे रहे हो, मेक श्योर दैट योर सुपरवाइजर नोज अबाउट इट एंड इज ओके विद यू डूइंग दैट. क्योंकि JRF का अमाउंट इज गुड. आज की डेट में JRF ऐसा नहीं है कि बहुत मिनिमल है, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर गेटिंग गुड इनफ अमाउंट. आई थिंक इट्स 37,000 मे बी यू आर गेटिंग. 37,000 per month if you are getting for JRF. You are basically indirectly government employee. Directly नहीं हुए, indirectly government is paying you. तो उस केस में आप किसी, मतलब परमानेंट तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते. आपकी फुल टाइम जॉब तो आप कुछ भी नहीं ले सकते साथ में. पार्ट टाइम you can do if your supervisor is okay with it. Ma'am, suppose if I got selected as an assistant professor on ad hoc basis in a university, या मान लीजिए परमानेंट हो जाते हैं, तो JRF अमाउंट विल बी, आई कैन अवेल JRF अमाउंट और नॉट? No, that is what I am telling. JRF की जो आप कंडीशन पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फुल टाइम. देखो, JRF मिलता ही उसी केस में है व्हेन यू आर फुल टाइम एनरोल्ड फॉर समथिंग, फॉर डूइंग PhD, फॉर डूइंग रिसर्च, फॉर अंडर और फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैसा ही उसलिए दे रही है.
So you cannot do anything permanent. If you get selected, DU में ad hoc का system खत्म हो चुका है. People are not aware of it. So many people text me daily on LinkedIn about this, on Instagram कि ad hoc empanelment कैसे कराना है. Ad hoc खत्म हो चुका है system. We do not have ad hoc system in DU anymore. आपका permanent हो जाता है, well and good, go for it. आप परमानेंट वहां से करो. Give an application to the university, to the UGC, that you have got a permanent seat in so and so college, or you have cleared your maybe UPSC, SSC, or any other government bank PU exam, or anything you have got with you. Submit an application. The day you get the letter of appointment from that university, from that institution, उस दिन से आप JRF क्लेम नहीं करोगे. उसके पहले का सारा आपका है. Ma'am, there is a YouTube comment. Ma'am, I am doing MSc Human Nutrition. Am I eligible for UGC NET Home Science or CSIR Life Science? MSc Human Nutrition. I think you would be eligible for both. Home Science तो आपका बेसिक ही न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंस, जब भी आप इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पढ़ते हो ना, लाइक आई सेड कॉमर्स के लिए, आई एम टेलिंग कॉमर्स बिकॉज मैं कॉमर्स से हूँ. एंड आई थॉट कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही सिर्फ यहाँ पे रहेंगे, सो आई टुक अ टू लाइक स्टार्टेड विद दैट ओनली. बट कॉमर्स में भी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कैन अपेयर फॉर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ऑल थ्री. क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी में लिखा होता है कि आपकी मास्टर्स में 75%, 65, 55% एलीड सब्जेक्ट्स में होना चाहिए. एलीड मीन्स कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, किसी में भी. सो यू कैन चेक द एलिजिबिलिटी. एक बार आप चेक कर लो, उसका प्रोस्पेक्टस पिछले वाला डाउनलोड कर लो, अभी जून वाला, एंड रीड इट कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी लिखी है. So I think we are done. No more doubts. Ma'am, it's about the amount that I can claim for JRF. So I want to ask if that amount should be explicitly used for research, books and other materials, or it can be used for personal needs too. See, again, it's more of what you show. Basically, JRF में you get a basic amount, you get your HRA, and you get contingency. Contingency जो होता है, that is solely for your books, for your study materials, printout, stationery, travel expenses, all these things. ये सारा आपका majorly contingency जो होता है, इसी से avail करना होता है. उसके bills also you have to submit. बाकी का amount is up to you how you want to spend it, but it is always preferred that you use it for your PhD only. क्योंकि जो भी आप PhD करोगे, आज के डेट में कोई भी PhD सेकेंडरी सोर्सेज पे बेस्ड नहीं हो सकती. यू हैव टू डू प्राइमरी. प्राइमरी करने जाना ही होगा. करने नहीं जाना होगा तो ऑनलाइन करना ही होगा. रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होंगे. इफ यू गो फॉर गुड जर्नल्स, गुड स्कोपर्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स पेपर्स, उनकी फी होती है अच्छी खासी. स्टार्ट सेविंग फ्रॉम योर JRF एज सुन एज यू स्टार्ट गेटिंग द मनी. डू नॉट थिंक कि हाँ अंधा पैसा हो गया है, सब उड़ा देंगे. डू नॉट डू दैट. आई अंडरस्टैंड नया नया पैसा बहुत अच्छा लगता है, बट स्टार्ट सेविंग फ्रॉम दैट फॉर योर PhD, क्योंकि PhD तो उसी पैसे से करनी है ना एट द एंड हमें. Ma'am, what is the difference between PhD and research? Are they the same or different? No, they are not same. Research is a very vast thing. Research is, अगर आप सिर्फ नेट JRF पेपर के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए भी यू विल डू बेसिक रिसर्च फर्स्ट. क्या कैसा सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या चीजें होती है. रिसर्च इज एनीथिंग यू. रिसर्च की डेफिनेशन किसी को पता है यहाँ पे? क्या किसी ने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा है अभी तक? एनीवन? किसी ने नहीं पढ़ा रिसर्च एप्टीट्यूड? दैट्स वेरी बैड. रिसर्च एप्टीट्यूड तो आप लोग को पढ़ लेना चाहिए था भाई अभी तक. किसी ने, जिसने एग्जाम दिया उसको तो मालूम होगा ना.
अभी कोई पूछ रहा था ना फॉर सेकेंड अटेम्प्ट की, अभी मैंने अटेम्प्ट किया था. यू नो द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, यू नो दैट? ओके, एनीवेज, देखो रिसर्च एक बहुत बड़ा एरिया होता है. पीएचडी इज योर एनरोलमेंट इन अ यूनिवर्सिटी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पे रिसर्च करते हो, आपकी जिसमें स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें आप एक बहुत छोटा सा बहुत स्पेसिफिक सा टॉपिक चूज करते हो और उस पर रिसर्च करते हो. और वो रिसर्च जो होती है वो आपकी किसी यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट के अंडर में होती है, उसको हम पीएचडी बोलते हैं. उसके अलावा वॉट एवर रिसर्च यू डू, दैट इज ऑल्सो रिसर्च, बट वो पीएचडी के अंडर काउंट नहीं होती है. तो रिसर्च एक बहुत वास्ट एरिया है. पीएचडी एक बहुत स्मॉलर एस्पेक्ट, बेसिकली एक एकेडमिक एफिलिएशन है रिसर्च की. रिसर्च तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है ना, जितनी भी साइंटिफिक इनोवेशन हैं सब रिसर्च से ही आ रही है. जितनी भी न्यू थियोरीज डेवलप हो रही है सब रिसर्च से आ रही है. एवरीथिंग इज थ्रू रिसर्च. तो रिसर्च बहुत बड़ा एरिया है. पीएचडी आपका एक एनरोलमेंट स्पेसिफाई करता है बेसिकली, कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो, कहीं पे आप एनरोल्ड हो और आप वहां पे किसी एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं. Ma'am, is it necessary to do research or publish paper in masters? It's preferred, it's not necessity. You can check your syllabus. अगर रिसर्च का बेसिकली यू गेट एन असाइनमेंट टू पब्लिश अ पेपर, यूजुअली इन यूनिवर्सिटीज जो भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड फैकल्टी पढ़ाएगी, दे विल आस्क यू टू पब्लिश वन पेपर. तो उसके अंडर में तो नेसेसिटी हो जाती है करना. इवन इफ अदरवाइज आपकी फैकल्टी नहीं बोल रही है या फिर सिलेबस में नहीं है, स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कैन स्टिल गो फॉर पब्लिशिंग वन पेपर. उसमें मैं नहीं बोलूँगी कि इनिशियली आप बहुत बड़े जर्नल्स स्कोपस वगैरह टारगेट करो. स्टार्ट विद बेसिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स. एक आध पेपर आप लिखोगे, यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न, यू विल नो व्हाट इज एग्जैक्टली रिसर्च, क्या करना होता है, पेपर पब्लिश कैसे होता है, क्या सिनेरियोज होते हैं. यू विल लर्न लॉट मेनी थिंग्स. सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड. बट अगर डिजर्टेशन सबमिट करनी है मास्टर्स में, इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. अगर मास्टर्स में डिजर्टेशन सबमिट करनी है तो आपको करनी पड़ेगी रिसर्च, पेपर भी लिखना पड़ेगा. So I think we are done. And in case of any queries, you can always reach out to me. I have already given my YouTube, LinkedIn, Instagram. You can reach out to me anywhere and I'll be available. I'll be happy to help. Once again, thank you, ma'am, for your enlightening session. We are honored to have had you with us today. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, people, you can lift.